Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter Control and Coordination. Chapter number is second, and in this chapter today my topic to discuss is functions of human brain. It is 10th standard biology. आज कल हमने पढ़े कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें बहुत सारे हमने पार्ट्स पढ़े हैं। अब हम आज इस लेक्चर में ब्रेन के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, इनकी क्या काम है, किस चीज़ को ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, अलग अलग ब्रेन का अलग अलग पार्ट हो अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। अगर हम बात कर लेंगे फोर ब्रेन की, जो फोर ब्रेन में जो फोर ब्रेन में जो ओलिफैक्टरी लोब्स आते हैं, ओलिफैक्टरी लोब्स, those olfactory lobes meant for the sensation of smell. These are meant for the sensation of smell. These olfactory lobes देखा गया, these are highly developed in animals like dog. तो olfactory जो lobes है, they receive information of sense of smell. That means जो भी हमें smell, we take the smell by sense organ, that is the nose, and there is the olfactory receptors which detect the sense of smell, and with the help of impulse they generate and reaches to the brain, where it is processing, where it is coordinating, then after it is coordinated then after by the olfactory lobe. जो olfactory lobes है, it is a part of the forebrain. Forebrain is the first part of the brain. Then second is the इसमें जो part दूसरा आता है, that is the cerebrum. Cerebrum. Cerebrum मैंने कल बताया कि this is the largest part of the brain, largest portion of the brain. Cerebrum जो है, it is the highest center of sensation, of different sensation. Highest center, it represents highest centers of different sensations, different sensations and activities. ये बहुत सारे सेंटर्स इसमें आते हैं, जिन सेंटर्स में अलग अलग सेंसेशन डिटेक्ट होता है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सेंसेशन ऑफ साइट, सेंसेशन ऑफ ऑडिशन, सेंसेशन ऑफ स्मेल। हाँ, तो ज़्यादा सेंटर सेंसेशन ऑफ विजन, तो बहुत सारे सेंटर्स यहाँ लोकेट होते हैं, और जहाँ इनको प्रोसेसिंग होती है विजुअली, जो ऑडिटरी होती है, सेंसेशन ऑफ टच, सेंसेशन ऑफ वी कैन से दैट टेम्परेचर, तो वो सारा कुछ यहाँ पे होता है। और दे आर दिस इज ऑल्सो सेंटर, this is also center for controlling various voluntary actions. Voluntary actions are those actions which are under our will, which are under our control. This is also a center. बहुत सारे voluntary actions एक्टिविटी हमारे बॉडी परफॉर्म करते हैं, वो ये सेरिब्रम उसका सेंटर होता है, एंड इट इज ऑल्सो हाईएस्ट सेंटर्स ऑफ डिफरेंट सेंसेशंस। तो ये यहाँ पे ऑसिपिटल लोब जो है, सेरिब्रम का जो ऑसिपिटल लोब है, occipital lobe is meant for the center of sight and hearing. जो occipital lobe इसमें आता है, cerebrum का occipital, मैंने कल आपको बताया parietal lobe है, occipital lobe है, frontal lobe है। जो occipital lobe जो है, occipital lobe that is a part of the cerebrum. Occipital lobe जो है, it is a center of sense of sight, sense of sight and hearing, also.
को सेरिब्रम आप देखिए एक लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन है और बहुत सारे एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटीज है दैट टेक प्लेस इन हियर। ऑल्सो ये कहा जाता है जो हमें क्रिएटिव कैपेबिलिटी होती है, इमेजिनेशन जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, जो मेमोरी होती है, जो लर्निंग पावर होती है, हम कहते हैं कि जो सेरिब्रम है इट इज ए एक्टिव पार्ट दैट meant for the having somebody memory, somebody intelligence, somebody capability of doing something, somebody solving the reasoning question, somebody have the memory power, creativity, वो सारा जो है जो सेरिब्रम के जो साइट है, जगह है जहाँ पे इंटेलिजेंस, किसी की जो मेमोरी होती है, लर्निंग पावर होती है, क्रिएटिविटी होती है, वो सारा यहीं पे को ये जो है सेरिब्रम जो है इसमें एक्टिविटी जो इस लिहाज से मेमोरी के लिहाज से, लर्निंग के लिहाज से, कैपेबिलिटी के लिहाज से, या रीजनिंग सॉल्विंग के लिहाज से, या डिफिकल्ट टास्क को लर्न करना है और उसको कैपेबिलिटी रखना है टू डू द सेम, वो ये चीज़ यहाँ पे होते रहते हैं, वो यहाँ से प्रोवाइड होते हैं और कंट्रोल होते हैं। वो यहाँ ये मैंने इतना बताया फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अगर हम आगे चले फंक्शंस, what functions, these functions performed by the different parts of human brain। अगर हम डायनसेफेलॉन की बात हम कर देंगे, डायनसेफेलॉन is also part of a four brain, ये फोर ब्रेन का ही पार्ट है डायनसेफेलॉन जो है इट हेल्प्स टू मेंटेन द हेमियोस्टेसिस, it helps in maintaining hemostasis, that means by regulating the body temperature, water balance, by regulating the heartbeat, by regulating the blood pressure. These are the homeostasis by regulation of various body activities, metabolic activities, जिनके कारण हम अपने आप को सर्वाइवल कर सकते हैं इन द एक्सटर्नल सराउंडिंग्स में। ऑल्सो इट कंट्रोल्स द हंगर, भूख, थर्स्ट, प्यास, सेक्सुअल एरोजल, पेन, प्लेजर, एंगर, एंड वी कैन से फियर, डर, खूब जो है ये इन चीज़ों को भी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। ऑल्सो इसमें देखा गया है जो डायनसेफेलॉन है इसमें एक मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें बहुत सारे एंडोक्राइन हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत सारे एंडोक्राइन हार्मोन जो उससे निकलते हैं वो रिलीजिंग या इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं, वो बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, उनको सिक्रीशन से उनसे जो हार्मोन सिक्रीट कराता है, उनसे जो हार्मोन निकल के उनको इनहिबिट कराता है, को बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन। एंड देयर इज द पेनियल बॉडी जो होते हैं वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन दैट सिक्रीट्स अ हार्मोन दैट इज द मेलाटोनिन। तो अगर हम देखेंगे डायनसेफेलॉन की जो पीनियल बॉडी जो होते हैं, पीनियल बॉडीज, वहां से जो एंडोक्राइन हार्मोन निकलता है, एंडोक्राइन हार्मोन, वो एंडोक्राइन हार्मोन हो गया मेलाटोनिन को, इनसे ही इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है एंडोक्राइन किससे, पीनियल बॉडी से जो। और आल्सो द हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ द वी कैन से द डायनसेफेलॉन। हाइपोथैलेमस खुद कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ये है डायनसेफेलॉन जो सिटल फोर ब्रेन का पार्ट है। तो फंक्शंस की बात चल रही है, इसके बाद जो हमारा मिड ब्रेन आता है, इसमें मिड ब्रेन में जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है, इट इज मेड ऑफ सुपीरियर
इट इज मेड ऑफ जो है सुपीरियर कॉलिक्यूलाई कॉलिक्यूलाई एंड इट इज मेड ऑफ inferior कॉलिक्यूलाई। वो जो खुद जो मिड ब्रेन का जो पार्ट आता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये इटसेल्फ मेड ऑफ टू पार्ट्स, सुपीरियर कॉलिक्यूला एंड इंफीरियर कॉलिक्यूला। जो सुपीरियर कॉलिक्यूला है इसमें दैट इज meant for the sensation of sight. This is meant for the sensation of sight. And this inferior collicula helps us in giving the sensation impulse of hearing. Sensation of, it provides the sensation of hearing. वो hearing को कंट्रोल करता है, ये विजुअल पावर को कंट्रोल करता है। जो inferior collicula है concerned with the hearing, and this is concerned with the, so this is the part and B part of just the mid brain जो है, इसका B part जो है, that second part is of the cerebral peduncles से, ये इसका सेकंड पार्ट है। को मिड ब्रेन दो पार्ट इसका बना हुआ होता है, सेरेब्रल पेडुंकुलस। सेरेब्रल पेडुंकुलस जो होते हैं इसमें जो कैरी करता है सेंसरी, इट हेल्प्स इन कैरिंग सेंसरी impulses, it helps in carrying the sensory impulses from medulla oblongata से and spinal cord to the थैलेमे जो है, थैलेमे क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन। जो थैलेमे पार्ट जो है, इट इज पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन। क्या मैंने बताया, जो इसका मिड ब्रेन का दूसरा पार्ट है सेरेब्रल पेडुंकुलस, इट कैरिंग sensory impulse from the medulla oblongata and spinal cord to the कहाँ से, थैलेमे। थैलेमे is a part of the diencephalon, वो हेल्प करता है, it helps in carrying the impulse from these part, जो हिंड ब्रेन का पार्ट है medulla oblongata spinal cord से लेके कैरी कराता है खाली सेंसरी impulses, जो कहाँ तक, जो थैलेमे पार्ट, जो डायनसेफेलॉन का, ये डायनसेफेलॉन का थैलेमे जो पार्ट है रिप्रेजेंट करता है, वहाँ इसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ये था काम जो है मिड ब्रेन का। अब सेरेब्रम की बात हम कर देंगे। सेरेब्रम इज आल्सो द पार्ट, इट इज द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, सेरेबेलम। दूसरा पार्ट जो मैं बताऊंगा इसमें, दैट इज द सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, और ये क्या काम परफॉर्म करता है, अगर एज अ नर्वस सिस्टम, एज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या काम परफॉर्म करता है। इट मेंटेन्स द पोस्चर, इट मेंटेन्स body posture, it maintains the equilibrium in body, it maintains the various voluntary actions that are initiated, जो असल में इनिशिएट हुआ है, इनिशिएटेड बाय सेरेब्रम, सेरेब्रम। जो सेरेब्रम से इनिशिएट हुआ है वो उनको फर्दर कोऑर्डिनेट करता, फर्दर उन वॉलंटरी एक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। अगर हमारी बॉडी जो होती है वो डिफरेंट पोस्चर में होते हैं, उसको उस वक्त उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना है, स्टेबल स्टेट में रखना है, वो सेरेब्रम का काम है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द वेरियस, इट कंट्रोल्स, ये काम है इनका, it controls
इन सॉरी वॉलेंट्री मोमेंट्स, हमारी बॉडी जो में अगर ह्यूमंस की बात हम कर लेंगे, दे परफॉर्म द वाइड रेंज ऑफ वॉलेंट्री मोमेंट्स एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द cerebellum. It controls voluntary मोमेंट्स इन अ बॉडी, उस चीज को कंट्रोल करता है सेरेबेलम. तो अब बात आई मीडुला ओब्लांगेटा, जो पार्ट ऑफ सिटल हिंड ब्रेन का है. मीडुला ओब्लांगेटा ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है. मीडुला ओब्लांगेटा, मीडुला ओब्लांगेटा, मीडुला ओब्लांगेटा जो है ये हिंड ब्रेन का ही पार्ट है. किस चीज को ये कंट्रोल करता है, इसको कहा जाता है कार्डियक सेंटर है. कार्डियक सेंटर, कार्डियक क्या होता है, ये कंट्रोल करता है, controls heartbeat, heartbeats, and it is also known as it is a respiratory respiratory center. It controls the breathing, controls breathing, breathing mechanism. ये भी कहा जाता है it is a vasocenter, vasocenter. That means it controls expansion and contraction of blood vessels. When it controls the expansion and contraction of blood vessels, there is a maintenance of blood pressure, maintenance, there is automatic maintenance of BP, that is a blood pressure, that there is, therefore it is known as a vasocenter. It is also the vasocenter, vasomotor center. हम लिखेंगे vasomotor center, which controls this thing here. Medulla oblongata also help us in controlling the reflex actions, that is sneezing, vomiting, coughing, hiccoughing, vomiting, swallowing, जो हम खाते sneezing. It controls these urinating, defecating. उस चीज़ को ये कंट्रोल करता है, मतलब कब ये चीज़ होना है, किस वक्त होना है. तो they are all this is also the center of the reflex, we can say it is a reflex centers which control the various reflex actions like sneezing, coughing, hiccoughing, vomiting, urinating, defecating. तो sneezing, बाकी जो ये एक्टिविटीज कंट्रोल इसी से होता है मीडुला ओब्लॉन्गेटा. इसका अंदर ये जो मीडुला ओब्लॉन्गेटा है, इसका अंदर ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है एक्टिविटी के लिहाज से. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑल फंक्शंस दैट परफॉर्म बाय द human brain. Different parts are involved and different parts of the brain perform the different activity. I hope you understand about this. Thank you.